Hello, today I will discuss about trigonometry second part. फर्स्ट पार्ट वीडियो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन सी. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. पिछले वीडियो में भी हम लोग कुछ फार्मूला की बात किए थे. अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला you can solve any questions of this previous videos formula. That is ये क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू एंड टेन थीटा इक्वल टू. व्हाट इज दिस? रिमेंबर, दिस इज पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल. And opposite to sin theta cosec theta, opposite to cos theta sec theta, and opposite to tan theta equal to cot theta. You can solve according to this formula. You can solve of this based question, formula based question. Such as example, we can take one example of these formulas. The question is tan theta, 5 tan theta equal to 8, 5 tan theta equal to 4. Then find the value of 8 sin theta, minus 3 cos theta, by 8 sin theta plus 2 cos theta. Okay, this question based on this formula. सॉल्व करते हैं हम लोग इसको. गिवन we will write 5 tan theta equal to 4, then we will write tan theta equal to 4 by 5. Any problem? 5 is multiple of tan theta, then उधर भेजेंगे तो डिवाइडेड में हो जाएगा. ओके, नाउ ड्रॉ एन पिक्चर. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज द 90 degree एंगल. इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस. ओके, tan theta, value of tan theta equal to what? The value of tan theta equal to P by B. It means the value of P equal to 4 and the value of B equal to 5. P equal to 4 or B equal to 5. Find the value of H. H means hypotenuse. Then the formula of hypotenuse equal to H square plus P square plus B square equal to H. P का value of P equal to 4, it means 4 का square, and the value of B equal to 5, it means 5 का square. Then 4 स्क्वायर ऑफ 16 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. एच स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इधर से उधर पास करेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर इसको, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, 2 और 1 3 और 4 41. ओके, 41 रूट अंडर 41. द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर 41. ओके, then find the value of this question. 8 sin theta minus 3 cos theta by 8 sin theta plus 2 cos theta. ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं, इसका वैल्यू आया था रूट अंडर 41. वैल्यू पुट करना है. 8 sin theta, इट मीन sin theta, फॉर्मूला ऑफ sin theta इक्वल टू P by H minus 3 cos theta, it means 3 cos theta. The formula of cos theta equal to B by H and by 8 into P by H plus 2 into B by H. Put the value of all value such as perpendicular, hypotenuse and base to this picture. Okay, it means 8 equal to P. What is P? 4 by H root under 41 minus 3 equal to 3 into B 5 H root under 41 by
8 into P 4/41 रूट अंडर और प्लस 2 into B 5/41 रूट अंडर. You can solve these questions you and get this answer. Okay. इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा इस सब फार्मूला पे. हम लोग आगे फार्मूला देखेंगे, आगे कुछ फार्मूला देखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड. बहुत सारे और भी फार्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हैं. ट्रिग्नोमेट्री का जो बैकबोन होता है वो सिर्फ फार्मूला होता है. इसलिए योर फर्स्ट वर्क इज यू शुड लर्न एनी ऑल फार्मूलाज. Some formulas I can see. This is sin theta into cosec theta equal to 1. Okay, more formulas. We know that the opposite of sin theta equal to 1 by cosec theta. The opposite of sin theta equal to 1 by cosec theta. अरे यही से तो पढ़ाए थे हम पीछे. cosec थीटा का अपोजिट होता है sin थीटा एंड द अपोजिट ऑफ cosec थीटा इक्वल टू 1 by sin थीटा. फ्रॉम वन फार्मूलाज यू कैन मेक 3 फार्मूलाज. ओके. सेकेंड फार्मूलाज इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1. tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1. वी कैन राइट tan theta equal to 1 by cot theta, and we can also write cot theta equal to 1 by tan theta. Okay, any problem? You should not any problem. Third formula is sec theta into cos theta equal to 1. We can write sec theta equal to 1 by cos theta and also write cos theta equal to 1 by sec. Here is some formulas. 3, 6 and 3, 9. 9 formulas to the base of multiple of trigonometrical ratio. Okay. First formula is sin theta into cosec theta plus equal to 1, and second is tan theta into cot theta equal to 1, and third is sec theta into cos theta equal to 1. You can write on the video and write these all formulas from this board. Now you can discuss about a standard angle of trigonometrical ratio. A standard angle of trigonometrical ratio. But two different formulas such as tan theta equal to sin theta by cos theta and cot theta equal to cos theta by sin theta. Note this formula because this is the different of this all formulas. Okay, note this formula. Now we will discuss about a standard angle of trigonometrical ratio. What is the standard angle? Sin theta और नीचे लिखते हैं sin theta, there is cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. 6 types, 5 types. 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree, and last one is 90 degree. Okay, this is a standard angle of trigonometrical ratio. From this ratio we can solve a problem to this angle ratio, to this ratio in your book. Okay, I will give one trick to write this formula. One trick, the trick is, this is the best trick to learn this formula and write this formula. First of all, you can
0 to 4, फ्रॉम 0 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक आप इसको लिख देंगे, 4 तक, एंड टोटल के नीचे बाई 4 लगा देना है। क्या करना है? बाई 4 लगा देना है। आफ्टर बी टेक whole value in this root and solve this value and write in this box. This is the value of sin theta. Okay, then 0 by 0 equal to 0 and the square root of 0 equal to 0. That means sin 0, the value of sin 0 equal to 0. The value of sin 0 equal to 0. You cannot write theta with this table. 1 square root of 1 and 1 and square root of 4 equal to 2. It means the value of sin 30 degree is equal to 1 by 2. 2 to 4 कट हो जाएगा, यानी कि आया 1 by 2. The square root of 1 equal to 1 and the square root of 2 equal to root 2, because not exact value of square root 2. The square root of 3 equal to root 3 and the square root of 4 equal to 2. It means the value of sin theta equal to root 3 by 2. 4 से 4 कट गया, 1 आया, ये 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। यानी कि आप इस वैल्यू को सॉल्व करिएगा, इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखिएगा वो साइन का वैल्यू होगा। सबसे क्या किया हमने? सबसे पहले यहाँ पे लिखा 0, फिर लिखा 1, ये अपने से लिखा, ये खुद से लिखा, ये क्या किया? खुद से लिखा, है ना। ये किसी बुक में नहीं दिया है, ये खुद से लिखा है हमने सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 0, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। ओके, और सबके नीचे क्या कर देंगे? 4 लगा देंगे, टोटल के नीचे 4 लगा देंगे और सबको रूट में ले लेंगे। सबको क्या करेंगे? रूट में ले लेंगे। रूट में लेने के बाद हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको नीचे लिखेंगे साइन थीटा के बॉक्स में। साइन के बॉक्स में लिखेंगे, वही वैल्यू साइन का बॉक्स होगा, कंजिक्यूटिव लिखते चले जाएंगे। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसके सामने लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके सामने लिखेंगे, इसी तरह आगे सॉल्व करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हमने इसको सॉल्व किया, 0 आया, यानी कि साइन 0 का वैल्यू 0 हुआ। इसको सॉल्व किया, 1/4 का 1/2 आया, यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 हुआ। और इसको सॉल्व किया तो 1/√2 आया, यानी कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हुआ। और इसको सॉल्व किया तो √3/2 आया, यानी कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 हुआ। और उसको सॉल्व किया तो 1 आया। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, इस ट्रिक से आप अगर टेबल भूल भी जाते हैं तो फिर से सजा के उसको आराम से लिख सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन का। इसलिए इस टेबल को ध्यान से देखना है। अब कॉस थीटा की बारी है। नाउ टर्म ऑफ कॉस थीटा, देन ऑल वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ऑल वैल्यू ऑफ साइन थीटा यू राइट अपोजिट साइड्स, फ्रॉम अपोजिट साइड्स ऑफ साइन थीटा वैल्यूज। इट मीन्स वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लेंगे 1, ये साइन 0 का वैल्यू होगा। उधर से लिखते आ जाएंगे, इधर से लिखते गए साइन थीटा का वैल्यू, उधर से लिखते आ जाएंगे कॉस, वो हो जाएगा कॉस कर वैल्यू। वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1। उसके बाद क्या है? √3/2, यानी कि यहाँ हो जाएगा √3/2। उसके बाद क्या है? 1/√2, यानी कि यहाँ पर जाएगा 1/√2। उसके बाद क्या है? 1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। और उसके बाद क्या है? 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ cos 0 इक्वल टू 1 and cos 30 इक्वल टू √3/2 and cos 45 इक्वल टू 1/√2 and cos 60 इक्वल टू 1/2, देन cos 90 इक्वल टू 0। ओके, tan थीटा का वैल्यू लिखना है। नाउ tan थीटा का वैल्यू लिखना है तो हमने एक फार्मूला का डिस्कस किया था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा cos थीटा। ओके, इस फार्मूला के बेस पर हम ये tan थीटा का टोटल वैल्यू लिखते हैं। एक बात और ध्यान से देखना है, 0/1 रहे इसका वैल्यू होता है 0, 0/1 रहे इसका वैल्यू होता है 0, लेकिन 1/0 रहे इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। यानी कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में अगर बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 रहेगा और नीचे कुछ भी 0 को छोड़कर रहेगा, उसका वैल्यू होगा 1। लेकिन नोमिनेटर में 0, सॉरी उल्टा बोल दिया,
डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू होगा इन्फिनेटिव, और न्यूमरेटर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, इसी के बेस पे हम ये tan का वैल्यू निकालेंगे और निकाल के फाइंड करके लिखते जाएंगे। यानी कि फॉर्मूला क्या है मेरा, sin थीटा बाई cos थीटा। tan का लिखने के लिए 0 का लिखने के लिए 0 का वैल्यू का बट्टा करेंगे, यानी कि यहाँ पे 0 है बाई 1, यानी 0 बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, इसको बाई करेंगे, यानी इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ये 2 से 2 कर दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई रूट 3। ओके, इसको बट्टा करेंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। इसको बाई करेंगे रूट 3 बाई 2 बाई 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या आएगा रूट 3। और इसको बाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 0। और हमने अभी बताया था कि 1 बाई 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ना कि 0 होता है। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटिव। अब कॉट की जब लिखेंगे ये हो जाएगा tan का फॉर्मूला, उसके बेस पर फॉर्मूला को हम सजा देंगे। और कॉट का जब लिखेंगे तो जैसे हम लोग साइन का लिखे थे और उधर से लिखते आ गए थे तो हो गया था कॉस का, उसी तरह हम लोग लिखेंगे tan का और उधर से लिखते आ जाएंगे तो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट का। किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट का। यानी कि हम लिखेंगे पहले वहाँ पे क्या है इन्फिनिटिव, तो यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटिव, तब क्या है रूट 3, ये लिखेंगे रूट 3, क्या लिखेंगे रूट 3, तब क्या है 1, ये लिखेंगे 1, तब क्या है 1 बाई रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3, और तब क्या है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, अब हमको लिखना है सेक का, ये हो गया कॉट का। अब हमको लिखना है सेक का। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सेक का कैसे लिखें, तो सेक का लिखने के लिए हम जानते हैं एक फार्मूला हम जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 जो होता है, और उसी में हम लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। इस फार्मूला का मतलब हुआ क्या, इस फार्मूला का मतलब हुआ कि जितना भी सेक थीटा का वैल्यू है उसका अपोजिट, मतलब कि उसका उल्टा कॉस थीटा का वैल्यू है। यानी कि अगर सेक थीटा का वैल्यू है 1 बाई 2 तो कॉस का उल्टा कर देंगे 2 बाई 1। सेक थीटा का वैल्यू है 4 बाई 3 तो कॉस का उल्टा कर देंगे 3 बाई 4। यानी कि हमको करना कुछ नहीं है, हमको जो है कि सिर्फ कॉस को उल्टा कर करके लिखते जाना है। एक चीज़ और, अगर कोई नंबर सिंगल है 2, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1 बाई 3। यानी कि किसी चीज़ को उल्टा करने के लिए हम 1 के बट्टा में रख देते हैं। किसके बट्टा रख देते हैं, 1 के बट्टा में रख देते हैं, 1 के बाई में रख देंगे, 1 के नीचे बाई लगा कर नीचे घुसा देंगे, वो उसका उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा है 4, यानी इट मीन्स इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई 4। मेरे पास लिखा है 1, यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई 1। ओके, मेरे पास लिखा है 0, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई 0। अंडरस्टैंड, वही हमको काम यहाँ पे करना है, हमको लिखते जाना है, इसका उल्टा लिखते जाना है, और उल्टा लिखते लिखते हमको जैसे हम लिख के ख़त्म करेंगे सारा वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा। चलेंगे लिखते हैं, 1 का उल्टा 1 बाई 1 यानी कि 1, रूट 3 बाई 2 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, और 1 बाई रूट 2 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 बाई 1, और 1 बाई 2 को उलट देंगे यानी कि 2, नीचे 1 नहीं लिखते बाबू, ये 2 हो जाएगा 2 बाई 1, और 0 को उल्टेंगे तो 1 बाई 0, क्या हो जाएगा 1 बाई 0। और अभी तो हमने बताया था कि 1 बाई 0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव, डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब क्या करेंगे, कॉस का लिखना है भैया, तो कॉस का लिखने का मेरे पास 2 उपाय है, या तो तुम साइन को उल्टा कर दो, क्योंकि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट टू कॉसेक, या इसी वैल्यू को इधर से लिखते लिखते गए हैं, उधर से लिखते लिखते आ जाएंगे, हो जाएगा कॉसेक का। 1 तो गया, वहाँ पे इन्फिनिटिव है तो यहाँ पे लिखो इन्फिनिटिव, यहाँ पे 2 है तो उसके बाद 2, उसके बाद है रूट 2 तो उसके बाद रूट 2, उसके बाद है 2 बाई 3 तो ये हो जाएगा रूट 2 बाई 3, और उसके बाद है 1 तो ये 1। ये हो गया आपका टोटल टेबल, ये टोटल टेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्टैंडर्ड एंगल का टेबल हो गया। टोटल को याद कर लेना है और सजा लेना है दिमाग में, और इसको लर्न कर लेना है। ये ट्रिक जरूर याद रखना है। इस ट्रिक से ये फ़ायदा होगा कि अगर किसी भी समय आप लिखना चाहें
तो बिना किसी बुक का हेल्प का, बिना किसी बुक के हेल्प का, बिना किसी दिमाग लगाए हुए आप सिर्फ इस ट्रिक से पूरे टेबल को सजा सकते हैं। सिर्फ इस ट्रिक से क्या किया मैंने, इसको सॉल्व के यहाँ लिखा, इसका अपोजिट यहाँ लिखा, इसको फॉर्मूला लगा के इसका लिखा, इसको उल्टा कर इसका हो गया, सेक कॉस का उल्टा किया सेक का हो गया, इसको उधर से लिख दिया कॉस का और सेक का हो गया, बन तो गया। नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।